ready for Omkara. Om. Okay. Which dates? हमने ये पढ़ लिया था. They look at how people are. Remember, we are doing the revision. रिवीजन में ध्यान से सुनना है. और मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बोलती चली जा रही हूँ. ये जो मैंने बोला था, ये जो which dates के ऊपर, they look at how people on their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. Okay, which dates? We'll start from here. By what criteria do we choose a set of dates? सर आपने मुझे अभी तक बुक नहीं दिया. By what criteria do we choose a set of dates? And important, the dates we select, the dates around which we compose our story of the past. हमने बनाई वो डेट and we make our stories around it. Then are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. हमारे पास बहुत सारे डेट्स हैं. योर बर्थडे इज देयर, योर पेरेंट्स एनिवर्सरी डेट इज देयर, योर फ्रेंड्स बर्थडेज आर देयर, बट देन यू हैव टू सिलेक्ट योर बर्थडे. ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, isn't it? You celebrate your birthday, that is very important. But so many, among so many dates, you have to choose. For you there are important dates. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. जिसको हम आज तक इतना इम्पोर्टेंस देते जा रहे हैं, अगर हम उन चीजों को चेंज कर दें, then our focus will shift. हम और no more will say so and so king became the king, become the ascend the throne, सिंहासन में बैठा इतने तारीख को, इतने दिन को, इस वक्त तक शादी हुआ था. हम कहते हैं अरे God rubbish, they are not able. Then what will happen? Consider an example in the histories written by British historians in India. The rule of each governor general was important. This is given importance by the historians. कई ध्यान से सुनो. तुमने पूछा था क्वेश्चन, अभी कॉलोनियल आने वाला है, इतना डिस्टर्ब हो जाओगे तो कैसे सुनोगे? कॉन्स्टेंटली हिल रहे, कैमरा को फिक्स रखो. Am I audible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, but then now you चोहित पूरा हिल रहा, मुझे पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा. Consider an example. हो गया फर्स्ट Warren Hastings, the first Governor General Warren Hastings, and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. In separate chapters we read about the deeds of others. हमने ये सभी पढ़ा था, ये सब नाम. A seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroy. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us. ऐसा लगता था कि गवर्नर जनरल की जिंदगी के अलावा हमारे पास सब कुछ नहीं. वो लंदन से कब आया, कब गवर्नर जनरल बना, कब क्या हुआ, कब नहीं हुआ, ऐसे सब बात. All the dates in these history activities, policies, achievements, ये जो है ये सारे उनके लाइफ के साथ उनके सारे पॉलिसीज दिया हुआ, उनका सारा एक्टिविटीज कनेक्टेड है. अगर आपका नाम बोला जाए, सपोज अनिकेत,
देन अनिकेत से रिलेटेड जितने भी सारे घटना घटेगा कि अनिकेत अनिकेत दिल्ली गया है, दिल्ली में रह रहा है, नाड़ा में रहता था पहले, अभी नहीं रह रहा है, एवरीथिंग दैट वी वांट टू जट डाउन अबाउट अनिकेत। अनिकेत थोड़ा बदमाशी कर दिया एंड ऑल दी थिंग्स you have to write the things will move around his name only. जैसे गवर्नर जनरल है, all the dates in these history books are linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. इसने क्या करा, डलहौसी ने, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या करा, उसने ये पॉलिसी बनाई, उसने सब्सिडियरी अलायंस बनाया वोल्फली ने, हेस्टिंग्स आके क्या करा, जेम्स मिल कौन है, कहीं तुम्हारा माइक म्यूट नहीं है तो यहाँ पे वाइब्रेशन, माइक को म्यूट करो तुम्हारा, हाँ सही है, नहीं तो ये पूरा ढाना करके बसता है फिर इसे देखते। So all these dates, all the dates in these history books were linked with them. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. आपकी बुक में तो एक ही बुक में सब बोल दिया, और हमारे टाइम पे वारेन हेस्टिंग्स के चैप्टर एक एक किताब है उनके ऊपर। उन्होंने जितने दिन तक राज किया, जितने दिन तक काम किया, तो जहांगीर के ऊपर इतनी मोटा किताब है, तुम तो बहुत छोटे होते, 7th में 8th में पढ़ रहे हो, ठीक है। Can we not write about the history of this period in a different way? Do you think so? Children, yes or no? The history of this period minus governor generals, their names should be there. The story now revolving around their life. Can we not write a history, the history of this period minus this governor general's life? कर सकते हैं? Yes or no? पढ़ो, किताब में पढ़ो। Yes, ma'am. Of this period in a different way. How do we focus on Yes, the ma'am. activities of different groups and classes? Yes तो बोल दिया, बहुत बात बोला, क्योंकि अखिल ने yes बोला तो एक जना yes बोला, but you should be able to answer why you are saying yes. अभी देखो किताब में देखो क्या लिख रहा है, how do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society? क्योंकि हम तब तो नहीं थे, अगर होंगे तब भी we don't remember anything. Do you understand? उसको तो हम कहाँ थे, तुमको याद है तुम लोग थे क्या अंग्रेज पीरियड में? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. हो सकता है No, हम ma'am. नहीं थे, हम बार बार जन्म ले रहे, जन्म बार बार मर रहे, बट देन इसका मतलब ये नहीं कि वी रिमेम्बर एवरीथिंग दैट हैज डन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। हम तो किताब देख के देख रहे, बट फिर भी लिखा जा सकता है इसको कैसे, बोल रहा है हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। उस वक्त लोगों का हालत क्या था, उसके लिए तुमको सोर्सेस ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आर्काइव से देखना पड़ेगा, पता नहीं हम वर्क आउट व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। व्हाई डू वी डू सो? तुम हम ऐसा क्यों करते हैं? उसको अलग अलग पीरियड में क्यों बांटते हैं? क्लास में कुछ पढ़ा था, 7th में कुछ पढ़ा, 8th में कुछ पढ़ा, फिर यूरोपियन हिस्ट्री आ जाएगा, फिर से मिक्स्ड पीरियड का हिस्ट्री पढ़ेंगे हम 10th में। तो ये ऐसा क्यों? व्हाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं थोड़ा तुम्हारा अटेंडेंस ले लूं, आप थोड़ा ठीक है। It is to give that when we write history or a story, we divide it into chapters. Why do we do this? It is so, it is to give each chapter some coherence. Coherence मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए। आपने चेन पहनते हो ना, चेन माला पहनते हो, एक ही धागा में पिरोया हुआ होता है, और एक के बाद एक बड़ा मोती के बाद छोटा मोती,
उसको डिजाइन भी बना, उसको जोड़ा एक दूसरे से। अगर मैं बोलती हूँ, मैं ना कहानी सुनाई है तो मैं सुनाऊंगी। ऐसा है, एक आदमी था, फिर कौवा आया, कौवा उड़ गया, मछली आ गई। तुम बोलोगे ये कौन सा कहानी हुआ मैडम? क्यों? आदमी तो आया था, आदमी सो गया, तो कौवा आ गया, कौवा के साथ मछली का क्या रिश्ता है? नहीं नहीं, मछली, मैंने मछली बोला, अरे नहीं शेर आया। फिर शेर आ गया, फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, शेर आके घूम फिर के चला गया, फिर बंदर आ गया। इसमें कोई कोई किसी के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। देयर इज नो कड़ी। कड़ी है क्या? नो भाई मैम। कौवा आया तो क्या करा? कोई कड़ी नहीं, इसीलिए कोहेरेंस उसको कहते हैं। In a way that makes some sense and can be followed. ये हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। कौवा के पास मछली आ गई तो क्या है, कौवा किधर मछली किधर? कैसे आई मछली? पानी तो कैसे निकली? मर नहीं गई? छोटे बच्चे तो समझ लेंगे, तुम लोग तुरंत बोलोगे ना मछली कैसे निकल के आ गई, उसको तो पाँव नहीं, वो तो तैरती है। तुम पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तब तक मेरे नाक आंसू आवाज करना। ये कोई कोहेरेंस नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है इसमें, लॉजिक ही नहीं है। एक के बाद एक, उसके बाद वो, उसके बाद वो, फिर आपको ये समझ में। एक चिड़िया थी, उसने घोंसला बनाई, 2 अंडे दिए। तुम जानते हो हमारे स्टाफ रूम के सामने एक कबूतर और एक कबूतरी, दोनों, मैं इन दोनों का नाम दिया था बुद्धू और बुद्धि। क्या कर रहे थे पता है? बुद्धू और बुद्धि ने एक घोंसला बनाया। वो बुद्धि जो है उसी में अंडा दे रही है, 2 अंडे गिर गए, फूट गए, उनको समझ में नहीं आ रही है। सेम जगह में अंडा दे रहे हैं, अंडा फूट रहा है, और बुद्धू जो है डंडे ला ला के घुसड़ रहा है। मैंने कहानी बनाई थी, एक था बुद्धू, एक थी बुद्धि, दोनों के ऊपर काम नहीं करता था। टापू के सामने नीम की लकड़ी ला ला कर डाल डाल के बुद्धू परेशान, और बुद्धि बैठे बैठे परेशान, बैठना पाए, जगह ही नहीं हुआ कोई। फिर बुद्धि ने बड़े कष्ट से 2 अंडे दिए। ये मैंने बनाई, वो चलते फिरते, लिखा कहीं नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, बुद्धि बैठ नहीं पाई ज्यादा देर, वहां जगह नहीं था, तो उसके 2 अंडे फूट गए। तो ऊपर से देख रही थी, बुद्धू को बोला, मुटू मेरा अंडा फूट गया, मेरा अंडा फूट गया, मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए अच्छा घोंसला बना। ये कोहेरेंस है, ठीक है? बात समझ में आई? ये तो मैंने मैंने खुद चलते फिरते बना दिया। ये बुद्धू है, Yes. बुद्धि है। In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story. अभी मैंने आपको 2 चीज बताई। पहले तो कौवा मछली वाली कहानी सुनाई, फिर उसके बाद बुद्धू बुद्धि का कहानी बनाया। तो कौन सी कहानी में कोहेरेंस था? बुद्धू बुद्धि वाली। मैम बुद्धू बुद्धि हाँ, वाली। बुद्धू वाली मैंने बनाया, बुद्धू और बुद्धि की कहानी में था। मैंने दिया अभी तो कोई नहीं है, दोनों ही उड़ गए टापू के सामने, कोई नहीं। फूल भी बदल गया थोड़ा, टापू टूटा थोड़ा, सीधा हो गया मुंह का। In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of then do we do? No, Indians simply do not fit. They have no space. भाई भारत की हिस्ट्री, भारत में गवर्नर जनरल के लिए आया, वही वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ, कहाँ इंडियंस कहाँ है? क्यों फेल हुआ ये? क्योंकि वो हमको शासन करते थे और हमको इन्वॉल्व नहीं करते थे। पढ़ाई तो हम तुम्हारी क्लास में पढ़ा रही, बट नो क्लासेस, नो चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8 आर देयर। ये सक्सेसफुल होएगा? किसको पढ़ा रही हूँ? नो मैम। नो मैम। स्टूडेंट को पढ़ा रहे ना। जो भारतीय कहाँ इंडिया, देखो कितना बढ़िया बोल रहा है। मैं सोच रही हूँ इसी में एक फ्रेम करके क्वेश्चन दे ही थोड़ा है। पहले जो क्वेश्चन पूछा उसको हटा देते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। They have no space. Indians have no space. देखो, the life of the British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had.
a new set of dates will become more important for us. बात समझ में आ गई ना? इसमें लॉजिक ही नहीं है। तुम भारतीयों को रूल कर रहे हो, भारतीयों को कोई जगह नहीं है। मुझे चौधरी ने क्वेश्चन पूछा है, कॉलोनियल समझा दीजिए। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, मेरे मन में है और मैं वहां पहुंचू पहले। हाउ डू वी पीरियड? कह रहे हो जो बनाते हैं पीरियड कैसे बनाते हैं? अभी आगे जेम्स मिल मेरा जाति दुश्मनी है उससे, मर तो गया हो काफी साल पहले, फिर भी अगर कहीं उसका एक हड्डी मिल जाए तो गोली मार दूंगी। समझ लो, देखो मेरे बारे में पूरा जानना जरूरी है तुमको। जेम्स मिल सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। दूसरा, वो जैसी भी मेरा फेवरेट मशीन है, ये बताया था तुमको मैं। जैसी भी मशीन के बारे में जानते हो तुम, जो खोदता है, जैसे भी वो मेरा फेवरेट मशीन है। अगर तुमको नहीं पता मेरे बारे में Yes, तो ma'am. तुम कुछ नहीं तो जानते हो फिर। खाली संगमित्रा मैडम मेरा फेवरेट मशीन के नाम ही नहीं जानते तुम। मैं तो फेमस हुई हूँ, मेरा नाम तो हिस्टोरिकल है। सम्राट अशोक का बेटी का नाम क्या है? संघमित्रा। What is the name of है? प्रणव बोलो, जीके वाले। मैम क्वेश्चन मैम बोला मैम मैंने संगमित्रा। अच्छा, संगमित्रा। और डू यू नो देयर इज a train running in my name? संगमित्रा एक्सप्रेस। मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो हाँ, मध्य प्रदेश में है। जबलपुर से चलती हूँ, यहीं पर भी आती है। डू यू हैव अ ट्रेन इन योर नेम? नो। टू इज इम्पोर्टेंट मी। तुम नहीं बोलो तो क्या हुआ? आई ट्रेन में। जब मैंने एमए का एडमिशन लेने गई तो वहां के जो लोग थे बोल रहे, प्रोफेसर था, कह look at her name, Sangamitra. She is from Odisha, Kalinga. She is the daughter of some emperor also. She belongs to Odisha. Just look at her. सब कुछ सब हिस्ट्री है। तुम्हारे पास पूछे अंकुश क्या नाम है? क्या नाम है इसका? अंकुश Yes, यादव ma'am. है। Yes, अंकुश ma'am. यादव है इसका नाम। तेरा नाम हिस्ट्री में नहीं है, तू इम्पोर्टेंट नहीं है। तू इम्पोर्टेंट है, मेरे नाम पर ट्रेन है। तुम लोग का मुझे जैसी भी बहुत पसंद है, जैसी को पूरा कभी भी नहीं बोलना। ये गड़बड़ हो जाए मामला। देखो जेम्स मिल क्यों मेरा दुश्मन है, अब आ रहा उसकी बात। इन 1817 जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, स्कॉटलैंड का है। इंग्लैंड इज तो ब्रिटेन जो है ना, जो इंग्लैंड है, इट इज कॉम्प्राइज ऑफ 4 का किंगडम। इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड इज वन ऑफ देम। स्कॉटलैंड एंड देन इंग्लैंड, देन क्या है वो, वेल्स एक और है। 4 जगह है जो मिलकर यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटिश इकोनॉमी स्कॉटलैंड का है। कहाँ का है? स्कॉटलैंड। Scotland. 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 या तो सुनाई नहीं दे रहा है, या तो तुम बुद्धों की बुद्धि हो। तो कहानी सुना दिया मैंने। एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, बस बताओ। पॉलिटिकल, अरे बुद्धू का वाइफ थी हो, इसलिए बुद्धि यूज करना। बुद्धू और बुद्धि, अखिल बुद्धि है। आखिर का ही होगा। मैंने कहानी सुनाया था, सुनो। मैंने पढ़ा रही। आई एम टॉकिंग अबाउट माय एनिमी। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, वह दार्शनिक भी था। पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। मैसिव जानते हो? मोटे मोटे 3 वॉल्यूम का किताब लिख दिया वो। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किताब का नाम क्या है? The history of British History of India. History of British India. India. वो अंग्रेज था तो अंग्रेजों को कोई नहीं लिखेगा कि इंग्लिश में लिखेगा। वो पागल जेम्स मिल। अब याद रहेगा जेम्स मिल? अनिकेत को कुछ Yes, नहीं ma'am. तो Yes, ma'am. मैम हमेशा याद रहेगा। मेसी मतलब वेरी बैड बुक लिखा। यूज 3 वॉल्यूम लिखा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस इस बुक में उसने क्या करा कि डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड।
हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो क्या खा के लिखा था वो? झगड़ा करवाने के चक्कर में लिखा हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और क्या कर रहा है? दिस पीरियड इज ए पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो समय ऐसा था। मोटा किताब किसने पढ़ा? मैंने आज तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ पा रही बिकॉज ऑफ इट्स साइज, ह्यूज वॉल्यूम। नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इट इज एन एक्सीलेंट बुक बट देन इट्स वेरी ह्यूज। मेरे को बहुत मन है पढ़ने का, टाइम तो नहीं। लाइफ डिवाइन तो बड़ी मुश्किल से शुरू किया, वेरी हार्ड लैंग्वेज। नेहरू बहुत पढ़ा लिखा आदमी था ना, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक किताब है लेटर फ्रॉम ए फादर टू द डॉटर, उसी किताब में। वो जो था जेल में नेहरू, तो इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखता था, उसको पब्लिश हुआ है। अगर वो किताब पढ़ लोगे ना, यू विल बी एनलाइटेंड पर्सन। Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central feature, as they appear to us. अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप पूछोगे ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, मैं बोलूंगी बहुत दिक्कत है। क्यों? कि नीनांसा के माथे के ऊपर एम कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके नीचे कोई एस नामक प्राणी बैठा है। आई डोंट नो यू पीपल। देन ये जो बीच में कोई आया है आज नया बच्चा, प्रणव के राइट में ऊपर ए लिखा हुआ, नीचे पी लिखा हुआ। प्रणव के ऊपर नीचे पी लिखा हुआ है, नीचे के लिखा हुआ। आई फेस दिस प्रॉब्लम वेरी सीरियस। और जब मैं तुम रूबरू बात करूं, तुम में से सभी बच्चों में से खाली अकेले के साथ एक दिन बात करा। मैं गई थी वहाँ फैजवान में, ये गया था अपना साइकिल ठीक करने। मैं कुछ काम के लिए गई थी तो नीरज की दुकान के पास पूछी थी। आई फेल्ट सो हैप्पी। तुम इतना दूर गए तो मतलब पहुंच के अंदर होते हुए भी पहुंच से बाहर। जब तुम लोगों को मैं देख रही हूँ ऐसा, रूबरू तो नहीं देख पा रही, तो भी मुझे खुशी। मेरे बच्चे में आपको नहीं लगता? अच्छा, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा बोल, ये दो प्रॉब्लम तो है ही है। अभी भी ये बच्चे इतना कहने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। अभी कम हो गए बच्चे, पहले ज्यादा। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनीवन। पढ़ना है तो आओ। देखो क्या नाम है उसका, ब्रिजेश लोधा, उसके पापा को बोल दिया जो मिल रहा है। तुम्हारी क्लास में कभी 20-22 से आगे गए ही नहीं है। ये तो कंप्यूटर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मैम ब्रजेश तो मैम पिछली क्लास में भी आया था। अरे उसका आना जाना क्या, पढ़ना नहीं कुछ। उसके पापा को बोला, फिर राजकुमार मिश्रा सर समझाए, तब जाके क्लास में एक आध बार आया है, फिर सुधार। ओके, why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us, so the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods. ऐसे करने से क्या होता है? अगर हम कह रहे हैं कि ये हिंदू पीरियड है, एंशियंट नहीं बोल रहे, दे डू नॉट यूज द वर्ड हिंदू। कौन नहीं कर रहा है? जेंट्सवी। तो वो लिख रहा है हिंदू पीरियड, क्योंकि ऑल हिंदू किंग्स एंड kingdom were there and Hindu kings were there, they were ruling. Then in the medieval period, all the Muslim rulers, culture of Muslims are kept up. Then in the British period, British came. We call it modernism. This period is called modernism. And then when we separate this thing, we will get a clear picture of the period. We do so to get a clear picture of this period of a time. Its central features as they appear to us. So जैसे हमको दिखता है, जैसे हम समझते हैं, what appears to us, it is not true. अंग्रेज आके हमको कॉलोनाइज करके हमको रूल किया, क्या क्या पॉलिसी बनाया, इस पीरियड में हुआ था, जो रिकॉर्ड है उससे हम ये हमको अपियर होता है और हम हिस्ट्री लिखते हैं।
That is demarcate the difference between periods. Becoming Hindu period में क्या था, Muslim period में क्या था, British period में क्या था. It demarcates the differences. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. इसीलिए पीरियड में बांटते हैं. दिस पोर्शन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. जो मैं इम्पोर्टेंट कही जा रही हूँ उसको ध्यान लगाओ, मार्क करो और लर्न. व्हाट शुड बी योर लर्निंग आउटकम ऑफ दिस प्लेस. तुम्हारे पेरेंट्स के पास गया, लर्निंग आउटकम में क्या है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पीरियड. Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization. मिल क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने बोल दिया था, इट इज द व्हाइट मैन्स बर्डन. White man's burden to develop to make the world civilized. मिल क्या सोच रहा है, एशियन सोसाइटी. इंडिया इज ऑल्सो एशियन सोसाइटी. जितने भी एशिया की कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज सोसाइटीज है, सब अंडर डेवलप, सब असभ्य है, सब जंगली है, किसी को कोई कल्चर नहीं है. ऐसा मिल का सोच, जेम्स मिल उसका ऐसा सोच रहा. समझ में आ रहा है ना. मिल तो समझ में याद रहेगा, जेम्स मिल याद रहेगा. तुमको याद कराने के Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे याद. अरे मेरा दुश्मन है इसी सोच कर याद रखो ना. अरे मैम का दुश्मन. अगर तुम बाद में पूछती हो कौन है मेरा दुश्मन, इसमें ये बहुत इजी हो जाएगा तुमको याद करना. ठीक है, प्रणव मैं सही कह रही हूँ. यस मैम. प्रधान साहब, हाँ, मेरे को सोचो मिल आ जाएगा अपने मन में. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim people despots ruled the country. Despots मतलब राजा सब कुछ है. ऐसा मुस्लिम पीरियड में भी राजा था, लोगों को थोड़ी सुनते थे, अपना चलाते थे. डेस्पोट, स्वेच्छाचारी, रूल द कंट्री. रिलीजियस इंटॉलरेंस, हिंदू मुसलमान में आदमी नहीं है. रिलीजियस टॉलरेंस है थोड़ा वो, पर वो खाली ऊपर है. कास्ट टाबूज, टाबू मतलब जो होता है ना जाति का, जातिवाद. टाबू मतलब प्रतिबंध. हम तो ब्राह्मण है, तुम तो शूद्र हो, तुम तो ये हो, तुम तो जातिवाद. समझ में आ रहा है. अंकुश याद करता है, मानता है, जाति में विश्वास करता है, जाति पाति भेदभाव है. अरे मेरे को मुंह दिखा भाई, कहा से चुप के बोलता आ रहा है. विश्वास करता है जाति पाति में. No, ma'am. हाँ, मैं भी नहीं करता. जाति में क्या करना, कौन सा जाति. अरे विजय मित्रा सर जा रहे हैं, बुला सब देखिए आपको क्या कितने कम बच्चे जा रहे. तो कास्ट अबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ. सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास. इस पेड़ में भूत है और ऐसे करोगे, अरे छींक दिया भाई, अशुभ हो गया. अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ. बिल्ली रास्ता काट गई. सुपरस्टिशन. Yes, ma'am. ये तो हम बहुत होता है. चलेगी कि नहीं, कि तुम जा रहे हो करके बैठी रहेंगी हो. खाली मटका रख दिया. मैं तो बड़ा मानती हूँ खाली मटका नहीं रखना सामने. ये गाना लगा देना उसके साथ. मैम कल परसों की बात है मैम, हम लोग बैडमिंटन खेलने जा रहे थे, तो मैं था, प्रणव था और मैम वो अक्षित था. क्या हो गया, तुम्हारा हम माइक सेवन- चला है बट कैमरा में इज नॉट ऑन. कैमरे में आओ तो बात करो मेरे से. अच्छा मैम, परसों मैम, कल परसों की बात होगी मैम. मैं था, माइक कैमरा क्यों ऑफ करा था.
मैम वो मैम नेवर एवर लीव योर गुड हैबिट। हाँ बोलो, चले जा रहे तो थे फिर मैम क्या हुआ? वो मैम वो क्या वो ना बिल्ली रास्ता काट गई थी हमारा। तो ये अक्षर बार बार बोल रहा रुक जा तो मैं बिल्ली जा रहा रास्ता है, काट गई। मैं जा रहा, कुत्ता काटता तो कुछ नहीं होता, बिल्ली का तो क्या होगा? यस मैम वो तो मैम कुत्ता हो रहा है ऐसे। मैम ये पी भी बोल रहा है रुक जा हम बोल। मैं तो मैम क्रॉस भी कर लिया कब का उस टाइम में क्रॉस भी किसने कर लिया बोला? था मैम। हम प्रणव भी बोल किस रहा था रुक जा। प्रणव भी तो उड़ीसा का है ना, सुपर टीचर नहीं है, मेरे अंदर भी है। तुम जानती हो भूतों का एस्पेक्ट है ना, भूत जो कॉन्सेप्ट है, इसको अंग्रेजों ने बनाया है। पाकिस्तान से निकल रहा करके, मैम मैंने मैम मतलब क्रॉस भूत कर लिया तो भूत बोल बोलते रहे हैं यहाँ तो चल। किसी का मैम ये पीपी बोल इतना रहा है मैंने जब बराबर क्रॉस कर भूत के लिया पास तो ये होता मेरा बोल रहा शरीर ही नहीं होता है। है यस कैसे मैम। काटेगा? दांत दिखा रहे, कहाँ से आ गया दांत? उसको तो जला दिया, गाड़ दिया, उसके दांत तो मिट्टी में खाद बन गई। और जो हमारी खुद वाली भूत है, अगर मैं मर हम्म, जाऊं, मेरा शरीर जला दिया। दे हैव नो बॉडी, हम्म, फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए देख हम डर जाते हैं। तुमको पता है 5 साल पहले ना करीब पे रहा है, तो वो यहाँ पड़ता है जबरदस्त भूत था यार, रात होते ही घूमने लगता। तुमने देखा नहीं? वो कहते हैं, तुम तो सुनते हो, भूत को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। मैम कोई हम तो भूत नहीं मैम होता। हमने तो मैम काट भी दिया कैसे भी करके रास्ता। मैं तो मैम काट लिया डर था तो लगता ये है रात को चले जाओगे, डर लगेगा। मैम ये तो है मैम रात को टॉयलेट तो करने की सांप से हिम्मत बड़ा नहीं डर होती। लगता है। रात को 2-3 बजे तो टॉयलेट में सांप से घुसने नहीं की डरते, हिम्मत नहीं होती। चढ़ जाएगा ऊपर। मेरे छत में तो आए दिन सांप के बच्चे गिरे रहते हैं। सांप के मैं बच्चे। बोलूं, अगर आज तो छोटे छोटे, हाँ सांप का छोटे छोटे केंचुआ जैसा, ऐसा आज तो ऐसा माथा उठा रहा है। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक सांप है। देख झाड़ू में उसको उठा के मैं नीचे डाल। मैम कौन से कलर का था? खूब आते मैम हैं। मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। अच्छा, तो तुम सपेरा हो? नो मैम मैं थोड़ी स्टडी स्लेट्स कर रहा कैसे हूँ दिखते सांपों के हो? बारे में। मैम कौन से कलर का था? अरे काला था, बंद करो उसको, तुम्हारा माइक करो, सुनो यहाँ पे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट। मुझे सांपों के बारे में ना बात करना, ना देखना, ना बोल। सांप को देखना ना फिल्मों में, ना किसी में, तो बंद कर दो। इतना बड़ा बात है। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट उन्हें महसूस करा, क्या महसूस करा? टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। एक क्लास 10th में चैप्टर था, इंडो इंडो चाइना। तो इंडो चाइना जो चैप्टर था उसमें क्या था, वियतनाम की कहानी बताई। उसमें लड़के लंबे लंबे बाल रखते थे। ये वहाँ फ्रेंच लोग गए डोमिनेट करने, और जैसे इंडिया में ऐसे उनका बाल काट दिया सब बच्चों कहते हैं, और सब जो बर्बर है, इतना लंबा लंबा बाल रखा है। पहले जमाने में राजा लोग लंबा बाल रखते थे, मुकुट पहन लेते थे उसके, रखते थे कि नहीं? कुछ आजकल को कुछ लफंगे ऐसे बाल रखते इधर बाल। लफंगे नहीं, नॉट नॉट ओनली लफंगे, गुंडा लोग रखता है, कुछ स्टूडेंट लोग रखता है, और कुछ बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लोग, वो भी इधर क्यों रखता है। थोड़े दिन तो शाहरुख बना के घुमा, इतना बड़ा जुर्म। उनको बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। पहले जमाने में लॉर्ड कृष्णा को भी ऐसे लंबा बाल, मुकुट पहन लेते थे। राजा लोगों को बाल रखना होता था। तो ये पीरियड चेंज हो गया, समय समय की बात। नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। अरे तुम यूरोपियन तो जो जूता पहन के पोटी करने जाते हो, वही जूता पहन के तुम किचन में भी खाना खाते हो। हम तो ऐसे नहीं करते। हम तो एक सू रिस्पेक्ट था, सू रिस्पेक्ट कंट्रोवर्सी। अंग्रेजों ने लोकमान्य तिलक नहीं एक थे उस टाइम पे, कोर्ट में जाने के टाइम में, तो मंदिर में जाके जूते उतार, तो कोर्ट में जा रहे थे, जज बैठा है अंग्रेजी जज, तो जूता उतार के जाओ। टू रिस्पेक्ट था। कितना कुछ करा मैं अंग्रेजों। यूरोपियन मैनर, तुम कांटा चम्मच में खाओगे, कांटा चम्मच में कैसे राइस खाओगे? राइस कैसे खाओगे और वो कैसे खाओगे? रोटी, रोटी को चाकू में काट काट के कुत्ता जैसे पाँव दबा के रखता है, फिर काटता है, फिर उठाता। हम इंसान हैं, हमारे पास भगवान ने एक चम्मच दिया है। मैं लिक्विड चीजें खाती हूँ, मैं गिराती बहुत ज्यादा। नहीं तो बचपन में तो ऐसा हाथ डाल के ऐसे खाते। मेरे पापा ने बोला, मेरे पापा बड़े अंग्रेजों के पास पढ़े हैं,
तो इंग्लिश मैनर्स चलेगा। कोई खाने के टाइम में आवाज नहीं करता, इंग्लिश मैनर्स। Arts, institutions and laws in India. Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness for the Indian people. तब तो कितना कम था, तो उसने बोला पूरे इंडिया को जीत लो। लोगों को कितना खुशी होगी। कैसे? तो लड़कियां भी क्या, मम्मी लोग जो घर में है वो भी हाफ पैंट पहनेंगे और टी शर्ट पहनेंगे। आजकल तो सही पहनते हैं, सब माएँ आजकल जींस पहन के घूम रही है। तो हमारे मम्मी लोगों की बात करी, वो लोग हाफ पैंट पहनेंगे? नहीं पहन पाती हूँ हाफ पैंट। घर में भी हो, उसी को अपना टांगे दिखता है। एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, पर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। समझ में आ रहा है भाई? तुमको जैसे खाने का मन है तुम ऐसे खाओ। मैं कौन होती जाके बोलने हैं जय तुम कैसे खा रहा है? बहुत छोटे थे मेरे मम्मी रोटी को रोल करके रख देती, फिर ऐसे पकड़ खाते थे। रोटी तो हम खाते नहीं थे। चावल खाने के टाइम में पूरा ऐसे हाथों पर कर देते थे बच्चे जब थे। फिर सबसे पहले मम्मी खिलाती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम अपने आप सीखे। पसंद नहीं मम्मी क्या दे रही खाने, फिर अपने आप खाना खाते खाते खाना सीखे। जो हाथ से खाने का मजा होता समझ में कहाँ से आएगा? तुम लोग हाथ से खाना खाते हो कि नहीं खाते? यस मैम, कभी कभी खाते हैं। यस मैम, हाथ से मैं खाता हूँ हम कभी कभी मैम, कभी कभी किसने बोला? मैम, मैं खाता हूँ अच्छे। कभी कभी किसने बोला खाते? प्रणव तुम? मैम मैंने बोला, नहीं मैम, मैं नहीं मैंने खाता। भी बोला। मैम मैंने बोला। कौन है ये कभी कभी? हम मैम अखिल प्रखर। क्यों भाई हाथ में क्यों नहीं खाना खाते हो, पाँव से खाते हो? मैम मैम चम्मच से खाते हैं ज्यादातर, तो हम दाल चम्मच राइस से तो हो खा पाते लेते हैं। हैं मैम। रोटी चम्मच से कैसे खाते हो? रोटी चम्मच से कैसे खाते हो? गिव मी द आंसर। इंडियन बनो इंडियन। स्वाभिमान गांधी जी 2 कपड़ों में फादर ऑफ द नेशन। दुनिया उनका बर्थडे मनाता है 2 अक्टूबर एज द इंटरनेशनल पीस डे। हम ऐसे कौन से बड़े चीज? चम्मच खाना चाहिए, लिक्विड चीजें तो खाओ। इसमें खाने से जो शांति होती ना, मैं भी चम्मच यूज करती हूँ लिक्विड के। बी इंडियन, तो ये कह रहा है इंडियन विल बी हैप्पी अगर हम इंडियन यूरोपियन कल्चर उनको पूरा सिखा। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। आप 2 बाकी किताब को अपने आप पढ़ो, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। टाइम नहीं है हमारे पास। जब तक एग्जाम 6 तारीख को शुरू होगा उसके पहले तक मैं पढ़ाऊंगी, जब तक पढ़ाना। हम डेढ़ तो माटा ही लिखी है मैम उसमें। एक बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल तुम्हारा एग्जाम सोशल साइंस, आप अपना डाउट क्लियर के लिए खुद सबसे क्लास में। आज तुम्हारा मैथ्स हो गया, ठीक है? कल सोशल साइंस। एक बात, टाइम टेबल मिल गया तुमको, 14 तारीख से तक टेस्ट चालू है हमारा सोशल साइंस का, 8th क्लास का है। तो आप अगर उसके अगले दिन जो है, जैसे कल कहते हैं आज आप मुझे डाउट क्लियर के लिए, ठीक है बेटा? ये इन्फॉर्मेशन देना भूलिए। चलो, in any case, in this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? खाने के लिए चम्मच पे जो लोग खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, दे डू नॉट वॉश देयर हैंड्स। दैट इज द, खाने के बाद भी हाथ नहीं धोते और खाने के पहले भी हाथ नहीं धोते। जो हाथ से खाएगा वो हाथ तो धोएगा ना, साबुन से हाथ धोएगा। ये है कमी है, हम चोरी है, बदमाशी है। और who am I to tell you that you eat with spoons and eat with your hands or legs? तो चाट के खाओ, कुछ छोटे बच्चे चाट लेते हैं,
टेबल में थोड़ा सा ऐसे डाल देते खाने की चीज, देर उसको उठा उठा के चिड़िया जैसा खाते हैं छोटे बच्चे। जितना गंदा जगह में डालो उनको उतना अच्छा है। Who am I? You decide what you should do. और खाने के बाद मुंह खुला करो, हाथ वॉश करो। झूठे मुंह में पूरे दिन घूम रहे हो तुम लोग, मैं जानती हूँ सारे बंदे। Neither they wash their hands nor do they। खाने का क्लास होता है तुरंत उसी पीले पीले हाथ में आ जाता है। तो कहते हम सैनिटाइजर लगाया, भाई सैनिटाइजर हाथ तो दो। आज बोल रहा है सचिन 20 सेकंड तक हाथ दो। मेरे को तो पहले तो मैं झाड़ू को करती हूँ हाथ धोती हूँ, प्लेट को करती हूँ हाथ धोती हूँ, मेरा तो धोना ही धोना है। Your life is your life. How can I make you modern? हाँ, स्कूल आने के लिए साफ सुथरा रह के आओ, साफ कपड़े पहन के आओ। हम स्कूल से जाते हैं, हम हमारे पास तो कोई नहीं है। तुम लोग होते तो तुम लोग थोड़े गंदे रहते हो, टॉयलेट वगैरह जाते हो। मैं तो जाते नहाती हूँ तुरंत। कुछ लोग तो उसी कपड़े को रिपीट भी करते हैं। आपकी मर्जी, इट इज योर लाइफ, यू कैन डू दिस। Who am I? I cannot, nobody can make others civilized। और जेम्स मिल बोल रहा है जितने भी एशियन कंट्रीज है सबको सिविलाइज करना, इट इज व्हाइट मैन्स वाला, व्हाइट वाला स्किन इज व्हाइट। इन एनी केस कैन वी रेफर टू, हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुम पढ़ोगे ना, व्हाइट मैन उनको बोले क्योंकि उनका चमड़ी गोरी चमड़ी। वी इंडियंस आर कलर्ड पीपल, चाइनीज एंड येलो पीपल। ये जो हम कहते हैं ना अखिल बड़ा गोरा है, कोई गोरा नहीं है उन लोगों के सामने। वो तो कुछ सागर सर बताएंगे, कुछ बायोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम रहता है तो इसीलिए उनका स्किन ऐसा व्हाइट। तो दिन पर दिन नहाते नहीं है, कभी कभी नहाते और उनके मुंह पे स्प्रे कर देते हैं। पूरे दिन खाते हैं पर कभी ब्रश नहीं करते हैं। हमारे तो दांतुन वाला व्यवस्था कितना है। हमारा सिविलाइजेशन, उनकी सिविलाइजेशन। हमको नहीं, अंग्रेजों को स्टाइल नहीं। The period before British rule was one of darkness। कह रहा है, यही बात बोला था, इंडियन कल्चर इज a heap of darkness। चौबीसों ने उसको जवाब देने के लिए एक मोटी वॉल्यूम लिख दिया, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, डार्कनेस। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? आज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमको बोल रहा है हमारी कल्चर अंधकार क्यों है, गंदा है? एक्सेप्ट करोगे? नो मैम। नो मैम। Who is he to tell us? इसीलिए in any case, can we refer to any period of history as हिंदू और मुस्लिम? अरे जब हिंदू लोग थे तो भी मुसलमान आ गए थे। मुसलमान को जाते जाते भी अंग्रेज लोग आ गए। खास करके तुम नहीं बोलो, ये 1 to 5 तो खाली मुस्लिम, 6 से 10 तक खाली हिंदू। ऐसा तो नहीं है ना, इट इज नॉट लाइक दैट। Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an as only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अरे अकबर जो था मुसलमान था कि नहीं? He was a Muslim Yes, ma'am. person, but he got married to so many जोधाबाई। कितने हिंदू प्रिंसेस को शादी किया, तब भी तो ये था। आज अगर कोई शादी मुसलमान से शादी कर लिया, it has been there even during Mahabharata period also था is there। लॉर्ड कृष्णा कितने लोगों को शादी करा जिनका कोई जाति पाति नहीं था। They are human being, that's all। तुमको कल अगर कोई तुम्हारी बिरादरी के आउटसाइड में तुमको पसंद आ गया, you will marry certainly that person। People do that।
Moving away from British classification, historians have usually divided into India into ancient, medieval and modern. देखो ये सही है, इसमें किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। एंशियंट टाइम, फिर मध्ययुग, फिर आधुनिक। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स। इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम था। क्या था? इट इज ए periodization that is borrowed from the West. ये तरीका हमारा नहीं हुआ, तो वेस्ट से आ गया। Where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. ये तो सही है। जहां रीजनिंग किया ना, हम लोग रीजनिंग नहीं करते पहले। वी कैन नॉट आस्क अवर, आजकल तुम पूछते हो पापा ये क्यों, मम्मी ये क्यों, पहले हम नहीं पूछ सकते। We had no liberty to ask such questions to our parents or to our elder. तुम लोग आजकल पूछते हो ऐसा क्यों? Then your parents has to answer. But हमारे जब हम लोग नहीं पूछ सकते। West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. What are the forces of modernity? Science, reason, democracy, liberty and equality. ये तो इक्वालिटी तो हमारा डेमोक्रेसी का पिलर है, इसको तो डेमोक्रेसी लिखा हुआ। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Medieval period में रीजनिंग तब भी नहीं था, ये सब ये फोर्सेस ऑफ modernity. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? हम साइंस से बोलते हैं, साइंस मीन्स रीजनिंग। Why did it happen? Why it happens like this? In the rainy season, the clothes take longer time to dry. Why? समझ में आ रहा है भाई? ये टाइम लगता है बारिश के मौसम चार को, बट इट हैज अ रीजन। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। If you do not understand the reason behind the question, then you have not learned anything. तुमने खाली रख लिया और लिख दिया। As you will see in this book, under British rule, people did not have equality. किसी का कोई है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई इक्वालिटी नहीं दी। आज भारत के ऑल नागरिक स्तर से, irrespective of caste, creed, religions and sex, पहले तो लड़कियां। As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty. उनको फ्रीडम ही नहीं था काम करने के, बोलने से। Nor was the period one of the economic growth and progress. गरीब रहता था, कोई ठाकुर साहब, जमींदार साहब, उनके सामने खड़े होकर बात करने का टाइम नहीं था। So here we conclude the class. I will do this. What is colonial? Next class. मैम Yes. मैम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैम, कोर्स के बाहर का। मैम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे? आप पूछो मुझे, पर क्यों पूछ रहे? प्रणव, आपको जरूरत है? यस मैम, वो एक बुक में उसके बारे में रेफरेंस दिया था मैम। रोबेस्पियर जो था वो रेन ऑफ टेरर था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया और लुई 16 गिलोटिन हो गया, उसकी बीवी मेरी एंटोनिएट भी गिलोटिन हो गई, तो आया द इरा ऑफ रेन ऑफ टेरर। रोबेस्पियर था, बाद में उसको भी गिलोटिन करा। वो बहुत ज्यादा रेन ऑफ टेरर, मतलब वो इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि लोगों का जीना दुभर था। समझ में आ रहा है? इसमें क्या था, वो
रुक जाओ, रोबेस्पियर जो था कौन सा ग्रुप था? जैकोबिन ग्रुप, जैकोबिन। आप अगले साल ही पढ़ोगे, नहीं पढ़ाऊंगी शायद, पता नहीं, कोई पढ़ाएगा। Anyway, we'll finish our class today and do the Shanti Path. Om Shanti, Shanti, Shanti. Saira ma'am. Sairam ma'am. Saira ma'am. Saira, बच्चों, Saira ma'am.